गढ़वाल की। तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। Good afternoon everyone. I am Vaishnavi Gupta, Secretary, Legal Aid Center, Law College Dehradun, Faculty of Uttaranchal University. Welcome you all on the auspicious day of Uttarakhand Sthapna Divas. Today we celebrate the 21st anniversary of the state of Uttarakhand. The state of Uttarakhand was formed on the 9th day of November 2000. To celebrate this day, we have among us Srimati Sushila Baluni as a chief guest. It's my honor and privilege to express my gratitude for your kind presence, ma'am. We welcome you, ma'am. Now I would like to express my gratitude to the Honorable Chancellor of Uttaranchal University, Shri Jitendra Joshi sir. Welcome, sir. Vice Chancellor of Uttaranchal University, Professor Dharam Buddhi sir. Welcome, sir. Dean of College Dehradun and Pro Vice Chancellor of Uttaranchal University and also the Director of Legal Aid Center, Professor Dr. Rajesh Patil sir. Attorney Law and Deputy Director of Legal Aid Center, Professor Dr. Poonam Rawat ma'am. Welcome, ma'am. Chairperson of Legal Aid Center, Dr. Vaibhav Niyal sir. Welcome, sir. And all the faculty members of Law College Dehradun and all the student bodies and students present here, I welcome you on behalf of Legal Aid Center. Now, I request Honorable Chancellor Shri Jitendra Joshi sir to felicitate the chief guest, Srimati Sushila Baluni ji. The guests on the dais are now requested to do the honor of the lighting of the lamp as a tradition. Deputy Director of the Society, Professor Dr. Poonam Rawat ma'am is also requested to join the honorable members. Now, I would like to invite the Director of the Legal Aid Center, Professor Dr. Rajesh Patil sir, to introduce the guest of honor, Srimati Sushila Baluni ma'am, followed by a speech on Uttarakhand State Agitation. Honorable Chancellor of the University, Shri Jitendra Joshi ji, Honorable Vice Chancellor of the University, Professor Dharam Buddhi ji, Chief Guest of the day, Srimati Sushila Devi ji, Head of the Law College Dehradun, Professor Poonam Rawat, also Deputy Director of Legal Aid Center, my dear faculty members, students, participants, President, Secretary, and all the office bearers of Legal Aid Center of Law College Dehradun, आज उत्तराखंड स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आदरणीय सुशीला बलूनी जी के जीवन परिचय को बताने का आदेश हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस शहर में और इस प्रदेश में आपका परिचय कोई ऐसा नहीं कि जिसको किया जा सके। आपके कार्य, आपकी कार्यशैली अपने आप में आपका परिचय रही है।
श्रीमती सुशीला बलूनी जी का जन्म 29 अक्टूबर 1939 को स्वर्गीय इंद्रमणि डोभाल जी और स्वर्गीय प्रतिमा देवी जी के घर में हुआ था। निवास स्थान है बड़कोट, उत्तरकाशी। आपकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई और राजधानी के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज से आपने एलएलबी की परीक्षा पास की और देहरादून कोर्ट में ही प्रैक्टिस भी की। गृहस्थ जीवन में अपने व्यवसाय के साथ साथ आप अनेकों संस्थाओं से जुड़े और समाज के सरोकारों और समाज की सेवा में लगे। पर्वतीय संस्कृति परिषद जो एक जानी मानी संस्था है, आप उसकी अध्यक्ष रही हैं और पर्वतीय संस्कृति को देहरादून में विकसित करने में आपका सक्रिय और विशेष योगदान रहा है। सन 1989 में आपने शैलजा महिला कल्याण संगठन की स्थापना की और इस महिला संगठन को आधार बनाकर पूरे उत्तराखंड में जन सरोकारों से जुड़े हुए कार्यों को दिशा दी। इसके अतिरिक्त आप देहरादून के मंगला देवी स्कूल में अवैतनिक प्रबंधक के पद पर भी कार्यरत रही हैं और कार्यरत हैं। विशेषकर आपको परिचय करना चाहूंगा मेरे छोटे बच्चों को। 5 अगस्त 1994 को आपने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के साथ में उत्तराखंड क्रांति दल में आप सम्मिलित हुई हैं और 9 अगस्त 1994 को ही आरक्षण के विरुद्ध भूख हड़ताल पर अपने अन्य साथियों के साथ क्रांतिक कचहरी प्रांगण में आप 17 दिन तक बैठे रही और यह मुद्दा बहुत ही प्रमुखता के साथ में उठाया। तब से लेकर अब तक महिलाओं को लामबंद कर राज्य प्राप्ति तक महिलाओं के नेतृत्व किया और आज साधन संपन्न व अधिकार संपन्न राज्य की लड़ाई जारी है। विशेष बात, वर्ष 1995 में 30 दिन की भूख हड़ताल राज्य प्राप्ति के लिए की और आपसे बता दूं कि आदरणीय बलूनी दीदी की यह हड़ताल इस राज्य को, आंदोलन को ऊर्जा देने का एक आधार साबित हुई और जिसका परिणाम हुआ नवंबर 2000 में आज के दिन राज्य अस्तित्व में आया और वहां पे भी आप एक सशक्त महिला के रूप में, एक संरक्षण के रूप में अपने मार्गदर्शन देती रही। हमें गर्व है, मैं आपके साथ में ये बात साझा करना चाहूंगा कि 24 अप्रैल 2011 को एक विशेष प्रोग्राम में, कार्यक्रम में लॉ कॉलेज देहरादून को आपको सम्मानित करने का अवसर मिला था। आप ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस और इंटेलेक्चुअल 2012 अवार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित की गई। उत्तराखंड राज्य में राज्य के निर्माण में अग्रणी भूमिका को निभाने पर 10 नवंबर 2013 को एलेक्टो होम्योपैथी से आपको सम्मानित किया गया। देवभूमि जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन उत्तराखंड देहरादून, उन्होंने आपको लौह महिला पुरुष के मानव से सम्मानित किया। ये एक औपचारिक परिचय था, लेकिन बच्चों मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा कि आज 21 साल बाद हम जिस उत्तराखंड को देख रहे हैं, 21 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था।
उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में चला, जिसमें क्या छात्र, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या व्यापारी मंडल, क्या कर्मचारीगण, क्या एडवोकेट्स, ये समझिए कि पूरा प्रदेश इस आंदोलन के रूप में और इस आंदोलन को चलाने के लिए 1, 2, 3 नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या पे सड़क पे थी। आपको ये बताना चाहूंगा और आपको ये गर्व होना चाहिए जो उत्तराखंड के निवासी हैं और जो उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद हैं, कि उत्तराखंड प्रदेश ने इस पूरे देश और पूरी दुनिया को एक आंदोलन की नई अवधारणा दी। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन और इस राज्य की पृष्ठभूमि पे बोलने के लिए तो कितना भी समय मिले वो कम है। इस अवधारणा पे फिर आपके साथ में मंथन करूंगा। अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your words of wisdom. On this auspicious day, we have organized a speech competition on the topic 21 years of Uttarakhand, Uttarakhand के 21 साल, and the judges for the event are Dr. Shifa Uniyal ma'am and Dr. Weber Uniyal sir. I welcome you, ma'am and sir. Rules of the competition are: participants are not allowed to carry any paper, and the maximum time limit is 4 minutes. Sir, please take your place. और सभी आगंतुकों के परमिशन से मैं उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी टोपी पहनकर अपने वक्तव्य को शुरू करना चाहता हूँ। तिराहे पर अस्मत लुटी, तिराहे पर जब अस्मत लुटी तो आंदोलनकारियों को अधिकार मांगने पर मिली थी गोलियां। तिराहे पर जब अस्मत लुटी तो आंदोलनकारियों को अधिकार मांगने पर मिली गोलियां। मेरू उत्तराखंड तुझे अस्तित्व में लाना इतना आसान नहीं थे। सदन में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय निर्णायकगण, अवगंतुकों और मेरे प्यारे भाई बहनों, महोदय, आज हम उत्तराखंड दिवस मना रहे हैं, परंतु बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम उत्तराखंड को एक खुशहाल राज्य मानते हैं, समझते हैं, परंतु यहाँ पर मौजूद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड को खुशहाल राज्य बनाने इतना आसान क्यों ना था। क्यों हमारे आंदोलनकारियों ने गोलियां खाई थी? क्या था वो किस्सा? क्या हुआ था रामपुर मुजफ्फरनगर तिराहे पर? क्या हुआ था? क्यों पहाड़ का लहू बहाया गया था? महोदय, अपने अधिकारों के लिए दिल्ली कूच कर रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई। अपने अधिकारों के लिए दिल्ली जा रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी, जो कि एक शर्मनाक किस्सा था। महोदय, उत्तराखंड बनाने की तमाम लड़ाई जो लड़ी गई, जिसमें कई आंदोलन हुए, कई आंदोलनकारियों की शहादत हुई और न जाने कितने गोलीकांड हुए। इसी में एक प्रमुख गोलीकांड मुजफ्फरनगर गोलीकांड, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और ये एकमात्र गोलीकांड नहीं था। इसके अलावा खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994, मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994, देहरादून गोलीकांड 3 अक्टूबर 1994 और नैनीताल गोलीकांड, और ना जाने ऐसे कितने कांड। महोदय, उत्तराज्यीय आंदोलनकारियों ने हमारे इस राज्य को बनाने के लिए बहुत शहादतें दी हैं। Good afternoon, everyone present on the rise and everyone present off the rise. The first mention, as my colleague has already mentioned much of the history, I will go with the literary history and some other historical aspects. The first mention of the place is found in Rig Vedas, where it is known as Devabhumi or Manishiyon ki Purna Bhumi. Then the Agri Brahmana says about Uttarakhand to be Uttar Kuru. Then the Skanda Purana divides Uttarakhand into 2 parts, that is the Manaskand, which is the present day Kumaon region, and the Kedarkand, which is the present day Garhwal region. Then some of the Buddhist texts also mention about Uttarakhand to be Himavant. Then Mahabharata and some other religious texts also mention about the Garhwal
be Swarg Bhumi or Tapt Bhumi. On 9th November every year, the Uttarakhand Sthapna Divas is celebrated. From the year 2000, today we are standing on the 21st year of the establishment of Uttarakhand. Uttarakhand had a great political history. As we are law students, so telling about how Uttarakhand came as after the political interest. In 1998, so the BJP coalition government in the center sent the Uttaranchal bill to the Uttar Pradesh government. The Uttar Pradesh government passed the bill by some 26 amendments and forwarded it back to the central government. The central government then on 27 July introduced the bill in the parliament, and on the 1st August the Lok Sabha approved it. On this 10th August, the Rajya Sabha passed it, and it was finally approved by the then President, Mr. K.R. Narayanan. Then it finally became the Act on 9th November 2000. From later 1930s, the events have been there, though the 1994 incidents are much highlighted. In 1913, the Congress had a general convention in the state of Uttarakhand. Also, the same year, the Tamta Sudharini Sabha held a convention for the upliftment of the people of the region. Jawaharlal Nehru also in a speech said that there should be a separate status for Uttarakhand, as our deans said that for reservations and other inequalities to be over with, some other status to be given to the state. Then there are much of the events which shall never be forgotten by the people. Those includes the Rampura Taraha Muzaffarnagar firing case, the Mussoorie firing case, the Dehradun firing case, the Nainital firing case, the Kotdwar firing case, and the Srinagar firing case. Of these, as my colleagues has said, the Rampura Taraha firing case has created such an imprint on our memory that it can never be shadowed. Though only because the events had greater mishappenings, though only 6 activists were killed on that evening. There were several reports about which tell that several women were brutally raped by the policemen themselves. The 8 policemen who were arrested, 3 were the inspectors. These all events took place in and around 1994, but then too it took around 6 years. 6 years for the state to have a separate recognition. At last, I would like to have a song, have 2 lines of a song without which the day was being complete. Uttarakhand Dev Bhumi Matrabhumi Shat Shat Vandan Abhinandan Shat Shat Vandan Abhinandan. On the topic of Uttarakhand, 21 years of Uttarakhand, honestly being a ethnic Kumaoni coming from Almora, there is a ton that I can speak about it. But first, as a concept, let's see Uttarakhand. Right? Uttarakhand, as we know it today, a state, a unified state. In the ancient times, during the eras of the great empires, the Mauryas, the Guptas, even the Mughals and a few sultans, their territorial extents, they did stretch up to and beyond Uttarakhand in some cases. But the unified concept, it was more or less absent. Right? There was the kingdom of Kumaon, the kingdom of Garhwal. In proportionality, these were more like principalities, but kingdoms nevertheless. So a unified concept of Uttarakhand arose out of conflict. In 1814 to 1816, it was the era of the Anglo-Nepalese wars. Right? So during this, with the English, the Kumaonis and the Garhwalis put up a unified front against the Gorkha invaders of Uttarakhand. And in 1816, there came the Treaty of Segoli, where on one hand we had the East India Company, mighty, magnanimous. It was the largest corporation ever set up in the world. And on the other hand, we had the relatively surprising, well-established militia of Bhimsen Thapa, the Mukhtiar of Nepal, chief executive of the then emperor. So together, the territories of the Garhwal and Kumaon kingdoms, they were ceded to the British. Through time, they evolved into the northern hill regions of the United Province of Agra and Awadh. And that was the scenario for the better part of 2 centuries. खटाई से बाल मिठाई का स्वाद है मेरा उत्तराखंड, वह देखो खूबसूरत और शांत सा पहाड़ है मेरा उत्तराखंड। मंचस्थ महानुभाव परम आदरणीय
आदरणीय निर्णायक मंडल एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति, नमस्कार। मैं शुभम कश्यप उत्तराखंड के 21वें वर्षगांठ के अवसर पर आप सबों के समक्ष अपने विचारों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हर की पौड़ी की निर्मल धार से त्रिवेणी घाट की पवित्र शाम, आओ चलो चले उत्तराखंड के चारों धाम। उत्तराखंड की बात अगर की जाए और उत्तराखंड का स्वर्णिम इतिहास है, अगर प्राचीन काल की हम बात करें तो उत्तराखंड दो भूभाग में बटा था। एक कुमाऊं खंड, दूसरा गढ़वाल खंड। कुमाऊं खंड को हम मानस खंड के नाम से ही जानते हैं और गढ़वाल खंड को हम केदार खंड के नाम से जानते हैं। अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड सनातन परंपरा की एक पृष्ठभूमि है जो चारों धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति कराती है। The deeper sorrow carves into your being, the more joy you can contain. This quote of Prophet Khalil Gibran reminds me of the bloodshed cases that we have seen in Rampur Tiraha case and the struggle of all the social activists of Uttarakhand, because of whom the Uttarakhand is carved out that we see today. A very good afternoon to everyone present over here. I, Neetu Bandhuni, feel honored to present my views on the topic 21 years of Uttarakhand. Uttarakhand is not just the land of gods. If we look back at its history, we will realize that Uttarakhand is also a land of brave hearts, where each bit and piece sing the sagas of Rani Karnavati, Tilu Rauteli and Madho Singh Bhandari, who never let invaders have their eyes on this land. It is the land of royal regiment, which is having honor of having the very first Paramveer Chakra and Mahavir Chakra holders and very first serious officer. The people of Uttarakhand are so innocent and so loving that they used to celebrate Diwali even after 11 days, and it is known as Igas, because at that time soldiers used to come back after 11 days of Diwali back to their home. This land is of environmentalists, where the Chipko movement, Ravai massacre took place and inspired the whole world to have concern toward environment, and this is the reason why even we have this particular ministry devoted to environment. The beauty of the nature given by God, admiring the mountains, land of Devdas it seemed to be, it is created differently, amazingly. It's Uttarakhand, our beautiful Uttarakhand. Good afternoon everyone, to the respected jury members and the faculty members and all my fellow mates. I am Vanshita Mandurwal from BA LLB second year, and I feel immense pleasure as I speak here on this auspicious day of Uttarakhand Divas. Uttarakhand, Devbhoomi, the land of gods, was formed on 9th November 2000 by joining several districts from northwestern Uttar Pradesh and the Himalayan mountain region. Since that day, 9th November is celebrated as Uttarakhand Rajya Sthapna Divas. Now, it's my honor to invite Honorable Vice Chancellor of Uttarakhand University, Professor Dharampati Sir, to address the gathering. Thanks, sir. आदरणीय दीदी सुशीला बलूनी जी, Chief guest of the day, which we are celebrating at Uttaranchal University, a very special day, Uttarakhand Divas. आदरणीय उत्तराखंड रत्न जितेंद्र जोशी जी, चांसलर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी. Why I said Uttaranchal Ratan? Because that girl just mentioned in 2016, government of Uttarakhand awarded our chancellors with the Uttarakhand Ratan. It means that the university has contributed a lot to the state, which I will be talking later. My friend and colleague, Dr. Bhavana ji, faculty members, students, and all ladies and gentlemen, they have been left
among these. I must congratulate all members who are present here on the day of Uttarakhand. क्या हम एक बार जय उत्तराखंड बोले सब लोग मिलकर के? जय उत्तराखंड। बच्चों से जो आवाज आनी चाहिए वो शायद आपका एनर्जी लेवल में थोड़ा जय उत्तराखंड। Great. Now let us say जय उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। और जोर से जय उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। Great. I think we should honor our institute and our state by जब हम इस तरह से इसको करेंगे तो शायद हम अपने आप को अपने प्रदेश का भविष्य अपने विश्वविद्यालय का भविष्य एक नई दिशा में लेकर के जा सकते। अभी मैंने बच्चों को सुना, बहुत अच्छी बात ये मुझे लगी कि उनको हिस्ट्री बहुत अच्छी पता है और शायद सभी के सभी विकिपीडिया उत्तराखंड पढ़ के आए हैं। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने 21 साल में क्या किया और अगले 21 साल हमें क्या करना चाहिए, शायद उस पर मंथन करना चाहिए। The state has not been created to develop the Dehradun and Nainital and Kashi Pantnagar. We need to develop, and in particular the young generation, they have to think about it. How I can work for Uttarakhand? How can I work for Almora and the beyond? Because I don't know much of the, I have not visited much of the part of the Uttarakhand, but I still know certain places. Why we cannot work for Mana? Let us make a new plan for the Uttarakhand. We can opt, I think I will request our Chancellor, sir, presently we have adopted the village nearby. If we can adopt and can create an example for the state government, a village in the remote area, maybe at the borders of the state, and then can give an example to the state. If we have done it, why you cannot do that? Thank you. Thank you so much, sir, for such enlightening words. Now, I would like to invite the Deputy Director of Legal Aid Center to come upon the stage. Thank you, Vaishnavi. मैं बड़े विनम्र भाव से आज के मुख्य अतिथि एवं उत्तराखंड आंदोलन की अग्रणी नेत्री तथा उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सुशीला बलूनी जी को आशीष वचन हेतु आमंत्रित करती हूँ। आइए। सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे उत्तराखंड का भविष्य, सभी यहाँ पर जितने भी मेरे अध्यापक गए हैं उन सभी को मेरा सादर नमन। बंधुओं, आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और लोग बड़े जोश में भी हैं। आज 21 साल पूरे हो गए, 22 साल लग गया है, 22 साल का नौजवान होने जा रहा है उत्तराखंड। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आज भी संघर्ष के पीछे नहीं हटे, क्योंकि उत्तराखंड के पीछे हमारा लक्ष्य क्या था, क्या उद्देश्य था हमारा, कि हमने जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग माना। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि एक तो हम लोग पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, दूसरा जो है लखनऊ में बैठे हुए लोग कैसे पहाड़ों को नियोजन देना है ये सोच उनके अंदर नहीं थी, और जिसके कारण जो है हमारा पहाड़ी क्षेत्र जो है पिछड़ता गया। तो हमने उस समय देखा कि जब हिमाचल बना था, पहले पंजाब में था, हिमाचल को अगर हम आज देखते हैं तो हमें लगता है कि हम आज भी कितने पीछे। तो हिमाचल को जो दिशा दी है वो थे वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे पवार जी ने वो दिशा उनको दी है वहाँ उस क्षेत्र को, कि वो आज बहुत आगे है।
संसाधनों की दृष्टि से देखें, 4 धामों को लेकर के चले तो उत्तराखंड को बहुत आगे होना चाहिए था। और पहाड़ों में अगर संसाधन नहीं होंगे, आज जो पहाड़ खाली की बात करते हैं हम कि पहाड़ खाली हो रहा है, पहाड़ खाली नहीं होगा। आप लोग पढ़े लिखे बच्चे पेपर पढ़ते हैं, आप लोग देखते हैं कि गर्भवती स्त्री का अगर बच्चा पहाड़ों में नहीं हो रहा, उसको देहरादून ला रहे हैं, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। कितनी बड़ी विडंबना है। अगर वहाँ अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छे डॉक्टर हो, तो कम से कम ये घटनाएं तो नहीं होंगी। वहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल है तो वहाँ टीचर नहीं है। जो हमारे प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो देहरादून में अपना महल बना करके यहाँ अपने बच्चों को ले आते हैं, जनता जहाँ की तहाँ है। तो ये आप लोगों को समझना है, खास करके मेरे विद्यार्थियों को ये समझना होगा, इन बच्चों को ये देखना होगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम कल जब जॉब पे जाएंगे तो अपने उत्तराखंड का ध्यान रखेंगे। ध्यान रखोगे, अगर तुम लोग ध्यान रखोगे तो उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ेगा, इसको रोकने वाला भी कोई नहीं। और इसीलिए आज मैं धन्यवाद करती हूँ जोशी जी, आपका और आपके जितने भी यहाँ पर टीचर्स लोग हैं सभी का, कि आप लोगों ने जो ये इस तरह का जो प्रोग्राम रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों की ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आज अपना जो महत्वपूर्ण है क्या क्या होगा, ये तमाम चीज़ों का ज्ञान आपको होगा, तभी आप जो ये भी सोचेंगे कि आगे 7 साल अगर संघर्ष करके ये उत्तराखंड मिला है तो भाई इसको आगे भी बढ़ना चाहिए। Thank you so much, ma'am, for your words of wisdom. It's my honor to invite the Honorable Chancellor of Uttarakhand University, Shri Jitendra Joshi sir, to share his blessings. आज उत्तराखंड को 21 साल हो चुके हैं, तो सभी को बधाई हो इस बात की। और हमारी सुशीला उर्मी जी माता जी बोलते हैं, माता जी का बहुत बहुत आभार है कि हमने बुलाया और माता जी आ गई हैं। आप लोगों ने माता जी को सुना, पर मैंने उत्तराखंड को बनते हुए देखा है, और आज के उत्तराखंड में और तब के उत्तराखंड में मैंने काफी अंतर जो देखा है। जिन्होंने जैसे ये थे, आज यहाँ बंद कर दिए गए, कल वहाँ बंद कर दिए गए, कहीं पुलिस चौकी को बंद कर दिए गए, पुलिस लाइन को बंद कर दिए गए, हाथी उड़गड़ा बंद कर दिए, और पूरे उत्तराखंड में डंडे खाते थे, पिटाई होती थी, फिर शाम को रात को 10 बजे को छोड़ दिया जाता था। तो और आज जो सत्ता में है लोग, मतलब उसमें एक तो मैं कह सकता कोई होगा कि तो जो सत्ता में आज है, विधायक है, मंत्री हैं, इन्होंने उस दर्द को समझा ही नहीं। अगर सही पूछे बात को, हम लोग तो मैं देखता था कि आज यहाँ है, कल वहाँ है, आज यहाँ हो रहा है, लेकिन ये जो जिन्होंने पीड़ा सही जो है, जो लोग है ना, आप उनको देखो कहाँ हैं, जिन्होंने बहुत मतलब पीड़ा सही है। माता जी सही कह रही थी, घर में आके जब पत्नी आती थी सुबह से शाम तक, तो पति जरूर बोलता था ना काम न था, अब आगे सुबह गई थी, रात को आ गई, है ना। और इतना संघर्ष था महिला का, महिला की वजह से ही ये देश आजाद को, ये हमारा राज्य मिला। ये तो राज्य मिलना बहुत मुश्किल था, इतना मूवमेंट था उसमें महिलाओं का कि बहुत ज्यादा पहाड़ में रोड कैसे जाएगी, कैसे वहाँ पे खेती हो रही है, कैसे बेचारा प्लान क्यों कर रहा है, मजबूरी में प्लान करता है, कोई शौक में थोड़ी प्लान कर रहा। अगर वहाँ सुविधा जो मिल जाए, जो माता जी की सुविधा मिल जाए, वहाँ पे पढ़ाई हो जाए, अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए, क्यों आएगा प्लान करके यहाँ। लेकिन मजबूरी है उसकी, क्योंकि वहाँ विकल्प नहीं उसके पास, नौकरी नहीं है उसके पास। तो आज माता जी आई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को बधाई। Thank you so much, sir, for such enlightening words. Now, I request Dean of College Dehradun and the Director of Legal Aid Center to declare the result of today's competition. बच्चों, बहुत सारी बातें हो गई इसमें,
अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा 1 मिनट के लिए कि आपका और उत्तरांचल का और उत्तराखंड का एक ऐसा रिलेशन जो आपको जाने अनजाने में शायद पता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। वो बात जुदा है कि आप कौन से प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, बिहार, तो सारे 28 राज्यों के बच्चे बैठे हुए हैं। आपके जो ब्लेजर पे ये लोगो लगा हुआ है, आपने कभी जानने की कोशिश करी ये क्या है? लोगों में 4 पार्ट है। ये तो एक ऐसे सवाल है कि आप उत्तरांचल विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं, ये बात आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। जो टॉप पोर्शन है वो दैट इंडिकेट्स हिल्स, पहाड़ों को बताता है। जो सेकंड पोर्शन है जिसमें एक कट लगा हुआ है, ये उत्तराखंड की पवित्र नदियों का प्रतीक है। तीसरा भाग, आप सबको मालूम है कि हम वन संपदा में देश के सबसे धनी प्रदेश है, तो ये हमारी वन संपदा है, हरियाली है, ये बुग्याल है। और जो आखिरी हिस्सा और भारी हिस्सा है वो उत्तराखंड की झीलें हैं। आपने तो 1-2 झील का नाम सुना होगा, नैनीताल वगैरह का। ये प्रदेश के पहाड़ों में बहुत सारी झीलें हैं जो कुछ लोगों ने देखी और अनदेखी। तो ये जो हमारा लोगो है उत्तरांचल, इसका सीधा सीधा नाता है इस प्रदेश से। उत्तराखंड के पहाड़, उत्तराखंड की नदियां, उत्तराखंड की वन संपदा और उत्तराखंड की झीलें, यानी कि सारी प्रकृति समाई हुई है। और जब वो प्रकृति आपने लोगों के रूप में अपने सीने में लगाई है, तो आपका और उत्तराखंड का रिश्ता बना या नहीं बना? ये आपको हमेशा पता होनी चाहिए। जो जजेस के रिजल्ट के हिसाब से मेरे पास में आए हैं, मैं आपके अनुमति से, इसमें जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो मिला है नीतू बंदूकी। इन्हें 1100 रुपए का नकद इनाम और सर्टिफिकेट। साक्ष्य गलगोटी, हरितुल रावत, वंशिता मंद्रवाल, अक्षत गोयल उसके बाद आएंगे। शुभम कश्यप एंड मोहम्मद साहिब। देखा अपना ये गढ़वाल की, तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी,
want to kindly rise up for the national anthem.